जी तो चाहता है लगा दूं आग तूर को, फिर ख्याल आता है मूसा बेवतन हो जाएगा। बल्दियां 5 कनाल 10 मरले 1964 स्कूलों तो उन्हें कब्जे तुसी नहीं छड़दे। मुसफ़र मारे थे हमारे दौर में, हमारे दौर में कवायद मौजूद है, एविडेंसेस के साथ बात करूंगा। मेरे कायदी, मेरे दोस्त बुजुर्ग और साथी दोस्त भाई सब को सलाम। ये ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਾਇਦ ਲਾਲਾ ਮੁਸਾ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 25/10/2021 ਨੂੰ ਇਹਦੀ 2 ਬੰਦੇ ਪਮੈਸ਼ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ, ਚੌਧਰੀ ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਕਮਰ ਜ਼ਮਾਨ ਲਾਲਾ ਮੁਸਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪਮੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦਾ? ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ 13.5 ਕਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ 5.5 ਕਨਾਲ ਰਕਬਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਰਕਬਾ ਲੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਲੈਦਾ ਕਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10-12 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 3/10 ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਰੀਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। 2/11 ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੀਫ ਅਫੀਸਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਫਿਰ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗਿਆ, ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਰਾਣਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਕਰੂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਐਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਿਆ 5-6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 11-12 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਖਾਣਾ ਲਾਲਾ ਮੁਸਾ ਵਿਦ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 14-12 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਸਦਰ ਲਾਲਾ ਮੁਸਾ ਨੇ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਕਾਲ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੱਚ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਾਣਾ ਤਾਰੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਰਾਣਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਗਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਲਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ 17 ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਲਕੀਅਤ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆ ਗਿਆ। ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ 24 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਕਾਇਦਾ ਗਰਦਾਵਰ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਗਰਦਾਵਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 199, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 128 ਲਹਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 2:15 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਬਲਦੀਆ ਲਾਲਾ ਮੁਸਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਗਰਦਾਵਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਇਆ, ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਲਦੀਆ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰਕਬਾ 5 ਕਨਾਲ 10 ਮਰਲੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
वो कह रहे हैं कि 1962 का शाह साहब 1962 जी रकबा खरीदन होया, खरीदिया नहीं, एक लफज है मारूसी शहर वास्ते ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ भी काम वास्ते जिस तरह मादिनियात ਤੁਸੀਂ कह सकते हो कि एक सड़क बननी है, एक मादिनियात चीज निकल आई एक पिंड ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਡਾਕਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 1962 ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਲਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਕਬਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸਾਂ ਇਹ ਖੂਹ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਾਰੂਸੀ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਲਦੀਆ ਉਸ ਰਕਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬਲਦੀਆ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਲੈਦਾ ਸੀ ਨਾ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਰਕਬਾ ਹੀ ਲੈਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਲਦੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਨੇ 25 ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, 26 ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਸਰ, 27 ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਬਲਦੀਆ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ 31 ਤਾਰੀਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬਲਦੀਆ ਦੀ, क्या बिल्डिंग इंस्पेक्टर तनख्वाह नहीं लै रहा सर, किस चीज़ की तनख्वाह लै रहे हैं? रकबे की रखवाली वास्ते लै रहे हैं। अगर गवर्नमेंट का रकबा अज भी हो गया मैं देने वास्ते तैयार हाँ। दूसरे नंबर पे उन्होंने ये गल कही है कि शाह साहब ने पैसे ले ने, शाह साहब ने पैसे ले ने, मैं चैलेंज करना 24 घंटे तक प्यारा साहब मैंने साबित कर दें, मैं 26 कनाल रकबा 26 कनाल अंगरोड़ बनवा दिया और अंगरोड़ के नाल बह कर दिया अगर ये साबित कर दे। दूसरे नंबर पे जनाब यह कागज ने, यह मेरी निशानदी की एप्लीकेशन है। फिर दूसरे नंबर जनाब 1964 यह सर बल्दियां 5 कनाल 10 मरले 1964 चेक करवा लें चेयरमैन साहब के बल्दिया का रकबा कितना है। सर मैं एप्लीकेशन दी थी, देख लो साफी हजरात देख लो क्या सैन किदे ने, मेरे भी सैन है, ऊपर देखते हो सैन किदे ने, शेख खालिद साहब ने चेयरमैन साहब ने इख्तियार दिते ने उन्होंने कि शेख खालिद साहब कह दें अलफ नाल क्या मेरे सैन नहीं, दफ्तर च एप्लीकेशन नहीं आई तो सर मैं कब्जा माफी है। देख लो सैन ने उन्होंने सर 11 पिच बनानी उन्हें शुरू की थी। सर एप्लीकेशन थाना सदर राला मुसा राणा तारक साहब बधाई ने ते 6 मुलाजम होर ने बल्दिया जेडे कहते हैं कि सानू पता ही नहीं जी, आखिरी दिन आए ने एप्लीकेशन ने सर बल्दिया राला मुसा दी, मेरिया ते नहीं, मेरे ते खिलाफ हुई ने सर। 23 तारीख ਨੂੰ दोबारा इन्हें काम शुरू किया, मैं 15 का कॉल की पुलिस वाले आए ने सानू दोवां घरां रोकिया। 24 तारीख ਨੂੰ मेरी निशान क्योंकि इन्होंने कला सी कि 24 तारीख ਨੂੰ निशानदेही होनी। सब तो पहले सर यह एप्लीकेशन सी मैं अपने डॉक्यूमेंट लगाया सर जो सबन निशान है ना जी ये बल्दिया की जगह, ये बल्दिया ये सजे खबे मेरी जनाब लेफ्ट राइट द लेफ्ट मेरा मालक अभी मैं सर अगर मैं रुकना होगा मेरे मालक दे मैं उस रकबे का मालक खसरा नंबर 168 का जिदे टैंकी बनी दरबारी मले अगर मैं रोकना होंदा तो क्यों वो टैंकी का मनसूबा उस टाइम शुरू होया सी जिहड़े नूर शाह साहब मरहूम वाशे नायब नाज़िम साहब जिस तरह कोई रास बनाई कि ना नून लीग के दौर में अगर रोकना होंदा या मैं कब्जा कर मैं अपने रकबे उसते भी करता मगर वो की सी वो वाम वास्ते वो 20,000 आबादी वास्ते सी, दरबारी महल्ले वाले वास्ते, शादबाग वाले वास्ते, सरदारपुर वाले वास्ते। क्या चेयरमैन साहब ने क्यों नहीं चालू करवाया?
सिर्फ उत्थे नां नहीं लिखण होना सी, वो नां नहीं लिखण होना सी, ना अपने काज का ना किसी होर काज का। अगर मैं रोकदा तो उस टैंकी नूं भी मैं रोकदा, मैं क्यों नहीं रोकिया? क्या उत्थे नौजवान नजर नहीं आए सन इन्हां नूं उस महल्ले 20,000 आबादी भी कि साफ पानी पी लैन? सर मैं अज भी कहना, अगर नदीम साहब एडा शौक है 13 कनाल मैं देना, 13 कनाल वो दे दे, 26 कनाल का ग्राउंड बनवाने लाला मुसा भी मैं पहल करना। बल्दिया छड़ देन, वो बल्दिया का रकबा है, बल्दिया जाने, महकमा माल जाने। मैं चैलेंज करना नदीम साहब जो चेयरमैन भी नहीं ना रहे, नदीम साहब रह गए, 13 कनाल का रकबा वो देन, 13 का मैं देना ते कल ही इंतकाल करा देने, दूर भी नहीं करते। अगर उन्हें बनाना होंगे ना ग्राउंड, लाला मूसा की आवाम एडी उन्होंने हमदर्दी, लाला मूसा जबान मार्केट बना देंगे, काफी रकबा सी, अज ही असगर टाउन भी बना देंगे, काफी रकबा सी। सर लाला मूसा जितने मेन स्कूल ने सादिया गोल के फासफर के रकबे, सलामिया स्कूल, सर नॉर्मस को हाजी रियाद साहब मौजूद ने बैठे, 450 कनाल तो साडे रकबे च बनिया, पैरे दे रकबे च नहीं बनिया। असी उहदे मालिक हां, असी सैदे वाले जितने जिमीदार हां, असी मालिक हां उस रकबे दे। जी असी उहदे सर मालिक हां। अगर कैरा साहब है ने दसन, अगर मैं सर अज भी कब्जा करो पाया हाँ। दूसरे नंबर ते गल की साइयां ने कब्रिस्तान की, सर मैं 81 मरले जगह का इंतकाल, अज उन्होंने 30-40 मुर्दे भी उत्थे दफन ने। सर मेरे ते कब्जे का कोई पर्चा नहीं अज ताई, ते जनाब दे पूरे पाकिस्तान में पता कि शमीम स्कूल के कब्जा किने कराया ते किने छड़वाया, खारिया प्लाजे का कब्जा किने कीता ते किने छड़वाया। सर मेरे तो पुलिस के रेट नहीं किए, मेरे तो पर्चा तो नहीं है, ना साइया ने कब्रिस्तान का तो ना इस जगह का बल्दिया का। एक कब्जा माफिया ये ने, ये कब्जा करना चाहते सन। तो दूसरा मैं दस देना कि इन्होंने कायद आज़म स्टेडियम से बंदियां को कितने पैसे ले ने, कहते हैं कि बंदे मनु पैसे देंगे ने काम करो। मैं दस देना किन्ने पैसे ले, मेरे भी अजीज ने कि जिन्हें बिना पैसा लिया सर 1 करोड़ तो बहुत पैसे ला लेने ना, 27 बूटे लाए ने, सिर्फ 27 बूटे। मेरे को तस्वीर भी मौजूद भी नहीं। मैं एक मुलाजम होते छड़िया कि बूटियों की राखी करनी है कि मैं दसना चेयरमैन साहब को 27 बूटे ला के 150 बन गया, तो करोड़ ऊपर कीमत उन्होंने हो जानी है। सर क्या उसे चेयरमैन साहब पैसा, नदीम साहब पैसा लाया सी अपना 1 रुपया साबित कर, 1 रुपया ही कि मैं 1 रुपया लाया तो मैं रकबा छाड़ देना, 1 रुपया साबित अपनी जेब च कर दे। सैयद हबीब आदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई वाजिब एहतराम अज़ीज़ान मजलिस, आपकी खिदमत में सलाम करता हूँ। बहुत शुक्रगुजार हूँ जर्नलिस्ट हजरात का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का। हमेशा आपकी मोहब्बतों के मशगूल रहे हैं हम। मेरे अजदाद का वर्षा है तबीयत मेरी, मैं अदावत में भी अदब का पास रखता हूँ। जब गुफ्तगू लॉजिकली होगी, मंतकी होगी, जब आपके अल्फाज में, आपके दलाइल में वजन होगा, तो जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये जो मामला लेके बहुत शुरू होगा किया जा रहा है कायद आज़म स्टेडियम के हवाला से, इस पे तो मैं बाद में बात करूंगा। तकमील का दावा नहीं है, परफेक्शन का कोई दावा नहीं है, इम्प्रूवमेंट आपने देखी है, आप यानी शाहिद हैं। उसको थोड़ा सा कंपैरेटिवली जो
लाला मूसा के लिए हमने इस दौर में जो डेवलपमेंट किए हैं या जो हमारे मंसूबाजात चल रहे हैं वो मैं लाला मूसा के शहरियों के सामने जरूर रखूंगा। और ये जो डेवलपमेंट के काम है जितने भी, ये अभी सिर्फ लाला मूसा की मैं बात कर रहा हूँ। लाला मूसा शहर से बाहर जो डेवलपमेंट है वो एक अलग बात है। मसरूफ बहुत दावे करते हैं, बहुत बुलंदोबान दावे करते हैं और फिर उन दावों के बाद 2-2 महीने नजर भी नहीं आते। हर 2-4 दिन बाद एक जोश सा आता है इनको, फिर न जाने कहां चले जाते हैं। बहरहाल हल्के में मौजूद है, अपनी कंस्टिट्यूएंसी में अपने लोगों के बीच में बैठा हूं। सादात खानदान के तमाम अफराद आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हम वक्त मौजूद हैं। तो मैं बात कर रहा था डेवलपमेंट की, सबका डेवलपमेंट की बात नहीं करूंगा। तो अभी जो लाला मूसा के लिए सबसे बड़ा मंसूबा है वो आपके लिए 1122 का मंसूबा है। ये मंसूबा हमारे जहन में 2013 से चल रहा था। मौसूफ फरमा रहे थे हमारे दौर में, हमारे दौर में, हमारे दौर में। इतना भारी इक़्तिदार रखने के बावजूद 2000 से लेके 2020 तक का वो कह रहे थे शायद, जहां पे आपके पास वजारतें भी मौजूद हों, जहां पे आपके पास हुकूमतें भी मौजूद हों, जहां आप क्लेम करते हो कि हम पार्टी के इंतहाई करीबी, मोतबर और बाइख्तियार लोगों में से हैं, जहां आप गवर्नरशिप भी एंजॉय करते हैं, तहसील नाज़िमशिप का भी कहते हैं। ये सभी इक़्तिदार के जो जीने हैं ये आपके हुकूमती द्वार में आए। बदकिस्मती से आपको कभी भी अपोजिशन के दौर में एमएनशिप नहीं मिली। तो एक भारी इक़्तिदार को आपने एंटरटेन किया है। लाला मूसा की शायरियों की बात होती है तो सवाल बनता है, इतना भारी इक़्तिदार हो, जहां पे वजारतें हो, तो लाला मूसा के आज भी हालात ऐसे क्यों हैं? मैं पहले भी कह चुका हूं, तकमील का दावा नहीं है, परफेक्शन का दावा नहीं करता, लेकिन कंपैरेटिवली आपको जरूर एक तकाबली जायजा दिखाऊंगा। तो मैं बात कर रहा था अपने मंसूबाजात की, 1122 की मैं बात कर रहा था। ये 2013 से ही हमारे जेहन में बात चल रही थी। सबसे पहले उस वक्त से नूरुल हसन शाह साहब ने ये मंसूबा पेश किया और उस दौर में कुछ देर के लिए यहाँ पे एक कैंप ऑफिस भी बना था 1122 का। उसके बाद इमरजेंसी सिविल हॉस्पिटल की जो है उसमें भी इंप्रूवमेंट हुई। तो इक़्तिदार तो आपके पास था, लाला मूसा के मरीज कहीं पे जाते थे। लाला मूसा के एक सिविल हॉस्पिटल को आपके दौर में इमरजेंसी नहीं मिल सकी। सर्विस रोड का आपने बहुत शोर गुगा किया कि जी बस पे हमने बनाया, ऐसा किया, ऐसा किया। इतना एंटरटेन करने के बाद, इतना बाख्तियार होने के बाद आज सर्विस रोड की हालात ऐसे क्यों है? यकीनी तौर पर आपकी कमी और कोताही नजर आती है हमें। इंशाल्लाह सर्विस रोड की मरम्मत और जो लाला मूसा के सर्विस रोड के साथ नाले हैं उनकी मरम्मत भी जारी है। लाला मूसा बाईपास का रोड भी तकरीबन मुकम्मल होने को जा रहा है। अच्छा, इसके भी मैं थोड़ी सी आपको बात बताता चलूं। ये नूरुल हसन शाह साहब के दौर में 8 किलोमीटर से ज्यादा का बाईपास था। तो शफात साहब जिला नाज़िम थे, मियां तारिक साहब उस वक्त एमपीए थे।
तो उस वक्त हमने अपने कुछ अजीजों से जगह लेके डोनेट करने की कोशिश भी की, लेकिन बदकिस्मती से सफिशिएंट फंड्स ना होने की वजह से ये सर्विस रोड आधा बना, वरना ये मैना चक से लेके बानोवाली तक था। बहरहाल उसके बाद बहुत इक़्तिदार को एंजॉय किया आपने, बहुत लुत्फ उठाया आपसे, लेकिन लाला मूसा से लेके जो डिंगा तक के रहायशी हैं वो उसी हंसता हालत सड़कों पर सफर करते रहे। आपकी तरक्की के हालात लाला मूसा से निकल के इस्लामाबाद तक चले गए और लाला मूसा और डिंगा के शहरी इन्हीं हंसता हालत सड़कों पर सफर करते रहे। इतने भारी इक़्तिदार में आपको कभी ख्याल नहीं आया। मेरे ख्याल में ये जो रोड 30 साल बाद बनने जा रही है, उसी दौरान आपका भारी फुल फ्लैज इक़्तिदार था। उसके बाद लाला मूसा में गंजा फाटक तक करीमपुरा तक सीवरेज के बहुत मुश्किल हालात थे। अभी आप जाके देख सकते हैं वहां पर नाले की तामीर भी हो चुकी है। लाला मूसा सर्कुलर रोड ये बहुत बड़ा इशू था हमारे लिए। ये मेरे बचपन से ही मैंने भी देखा है, लाला मूसा में जवान हुए यहीं पे पढ़े लिखे हैं, तो लाला मूसा का सर्कुलर रोड भी मंजूर हो चुका है। इंशाअल्लाह अजीज सैयद फैजुल हसन शाह और लियाकत बदर साहब की क़यादत में जल्द ही अपने पाए तक मिल को पहुंचेगा। एक और मामला लाला मूसा के सीवरेज के हवाले से अक्सर बयान किया जाता था, जिसके लिए फेक एक्सक्यूजेस बहुत चले हैं जी, इसके लिए बहुत ज्यादा फर्ज चाहिए, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, ऐसे ऐसे है। जब काम करने का दिल हो तो अल्लाह की जात मदद करती है। जब से एमएनएशिप आप लोगों ने अदा की, अल्लाह की जात का करम हुआ, तो हमारी नजर में सबसे पहले मामला ये सीवरेज का था। अक्सर हम भाई सैयद फैजुल हसन शाह साहब की खिदमत में हाजिर होते थे और अक्सर उनकी गोश्तगुजार करते थे कि शाह साहब ये बहुत बड़ा मसला है। इसमें हमारे बल्दिया की टीम का बहुत किरदार है, शबीर बंडी साहब का, हनीफ भट्ट साहब का और दीगर अहबाब यासिन भट्ट साहब बैठे हुए हैं, मिट्टू शाह साहब भी हैं। तो इनके साथ ये मामला रोजाना की बुनियाद पर डिस्कस होता था। 20 साल बाद नालों की सफाई हुई है लाला मूसा। तो उस दौरान मेरा इतना सा सवाल है, चेयरमैन कौन थे? जब आप लाला मूसा के नालों की सफाई 20 साल बाद करते हैं, तो इन 20 सालों के दरमियान लाला मूसा की भागदौड़ किसके हाथ है? और जब इस मामले पे थोड़ा सा सोचा, लाला मूसा सरदारपुरा चौक में हम सब की एक ही शिकायत थी। अक्सर वहां पे शेहावाला कब्रिस्तान जनाजा का जाने का इत्तेफाक होता था, तो बहुत से मसाइल पेश आते थे। आज अभी आप जाके देख सकते हैं, हालात आपके सामने हैं। किसी भी शहरी को कम से कम सरदारपुरा चौक में कोई तकलीफ आई नहीं। कभी हालात ऐसे भी थे कि बिना बारिश वहां से गुजरा नहीं जाता था। वो बिलावल साहब वाली बात, तो ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा पानी आता है, वो बात की है। लेकिन बगैर बारिश के भी लाला मूसा सरदारपुरा में पानी के मसाइल, चोरी के मसाइल बहुत ज्यादा थे। उसके अलावा रिसेंटली कुछ अर्सा पहले भी हैवी रेनिंग सीजन गुजरा है। मैं ये तो नहीं कहता कि लाला मूसा में पानी नहीं खड़ा हुआ, लेकिन कम से कम एक रात के बाद वो नजर भी नहीं आया। उसके बाद लाला मूसा के हर मोहल्ला में इलेक्ट्रिसिटी को बड़ा अपग्रेड किया गया है। बहुत ज्यादा 4 तार भी लगवाई गई है। अक्सर बरसात के मौसम में ये शिकायत आ जाती थी कि फलां पोल पे खतरा है, फलां जगह पे खतरा है। तो लाला मूसा की 4 कोर काफी तादाद में, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है, वो भी इंशाल्लाह जल्द आपकी खिदमत में रख दूंगा। और तकरीबन हर मोहल्ले में ट्रांसफार्मर अपग्रेड किए गए। उसके बाद गैस प्रेशर, लाला मूसा का सुई नाजुन गैस का जो इशू था, अक्सर गैस प्रेशर बहुत कम रहता था।
तो वफाक में भी हुकूमत, वजारत, गवर्नरशिप गिलगित बल्तिस्तान की भी स्वाबदीदी फंड भी होते होंगे यकीनी तौर पर आपके पास। तो ये ख्याल क्यों नहीं आया कि लाला मूसा के शहरियों के लिए गैस का प्रेशर एक बहुत बड़ा मसला है। उसके लिए सबसे पहले तो लाला मूसा की जो पुरानी पाइपलाइन थी उसकी सफाई भी करवाई गई और उसके बाद 8 इंच की एक नई लाइन डलवाई गई है लाला मूसा के लिए स्पेशल, जो चंद दिनों तक मुकम्मल होने को जा रहा है इंशाल्लाह। और बहुत से मंसूबा जात भी हमारे पास ऐसे हैं। इन मंसूबा जात में ये नहीं है कि किसी पे कोई एहसान है, ये हम अपने आप को आप लोगों की अदालत में पेश करने जा रहे हैं। हमारी डेवलपमेंट आपके सामने ये है। अगर आप हमारी कारकर्दगी से प्रोग्रेस से मुतमिन हुए तो यकीनी तौर पर आप लोग ही आइंदा हमें मुतमिन करेंगे। बहरहाल यहाँ पे और भी कुछ ऐसे तज़किरे हैं कि अराजी सेंटर लाला मूसा की शहरी हुई और दीगर गर्दनवा की ये तकलीफ मैंने भी देखी है। जब कभी किसी एक फर्द को अपने जमीन का, अपने घर का मलकियती सबूत चाहिए होता था तो खारियां अराजी सेंटर में बड़े धक्के खाने पड़ते थे। बाद लोग तो रात को वहीं जाग के रात गुजार करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं का नतीजा है, आपकी मोहब्बत का नतीजा ये है कि आज आपको अपना मलकियती सबूत लेने के लिए खारियां नहीं, आपके अपने म्यूनिसिपल, आपके बल्दिया ऑफिस में आपका अराजी रिकॉर्ड सेंटर मौजूद है। सिविल अस्पताल की जो इमरजेंसी के लिए जो मैं कह रहा था तो 15 करोड़ मंजूर हुए हैं। ये तकरीबन 15 करोड़ मंजूर हो चुके हैं। क्या ये फंड उस वक्त आपके पास नहीं थे? लेकिन अगर मतमाए नजर फकत अरबाब इख्तियार की खुशनुदी हासिल करना हो तो यकीनी तौर पर अवाम के मसाइल नजर नहीं आते। बादशाहों की तारीफों तस्नीह करना पड़ती है। तो बदकिस्मती से जो अपने आप को फर्जंदे लाला मूसा कहते हैं, जब इन्हें इक़्तिदार मिला तो फर्जंद होना तो बहुत बड़ी बात थी, लाला मूसा ही भूल गए। अभी सबसे बड़ा मसला एक और भी है जिस पर डिस्कस करने जा रहा हूं जी, लाला मूसा अंडरपास। बहुत से मिसाल थे जब लाला मूसा के ये दोनों यूटर्न एनएचए ने बंद किए थे तो उस वक्त भी एक बड़ा डिस्प्यूट हुआ था। इमीडिएटली हमारा एनएचए के साथ मामला बन गया था। आप सभी अहबाब की नजर में भी होगा। अगर यूटर्न्स को देखें तो एक दफा कायरा क्रॉस करना पड़ता है लाला मूसा के शहरों को, दूसरी तरफ से आपको ऑलमोस्ट वैरोवाल के करीब जाना पड़ता है। तो लाला मूसा की शहरी लिमिटेड बजट में एक दफा भी शहर को क्रॉस करें, दूसरी तरफ से भी, और महंगाई के बिलखुसूस दौर में, तो ये बहुत मुश्किलात थी। इंशाल्लाह लाला मूसा के लिए आपके करीबी पैदल चलने वाले हजरात के लिए और मोटरसाइकिल हजरात के लिए अंडरपास की मंजूरी भी तकरीबन हो चुकी है। अभी मैं आ जाता हूँ जी दूसरी तरफ, कायदे आजम स्टेडियम का जो शुरू होगा, मसूफ गुफ्तगू करते हुए बुखलाहट का शिकार हैं या हवास बास्तगी का। मैंने पहले कहा है कि अगर आपके पास मंतक है, दलील है, जवाब है, तो आपको लाउडर नहीं बोलना पड़ेगा, ना ही शाउटर बोलना पड़ेगा। ये चीज के किसको बता रहे हैं? आपकी आवाज आपके नुमाइंदे सामने बैठे हैं, मीडिया हजरात सामने, मीडिया के सारे सामने बैठे हैं, तो आप क्यों इतना गला फाड़ रहे हैं भाई?
जवाब से बात करें, दलील से बात करें, मंतक से बात करें। मुझसे पहले मेरे बुजुर्ग, मेरे चाचा जी रुखसार मोहिउद्दीन साहब ने कायदे आजम स्टेडियम के हवाला से सारी तफसील भी बताई और बहुत बड़ा ऐलान भी किया। 13 कनाल आप दें, 13 कनाल हम देते हैं और 26 कनाल पे लाला मूसा के शहरियों के लिए, बिलखसूस नौजवानों के लिए एक ग्राउंड, एक स्टेडियम बनाते हैं। मसरूफ ने बहुत शोरो गुआ किया। अबाई मैदान हमारी तरफ से 13 कनाल अभी ले, ज्यादा दूर की बात नहीं है। वो बार बार कहते रहे मैं टाइम देता हूं जी, मैं टाइम देता हूं। किसको टाइम देते हैं? अभी हमारी तरफ से आप ले जाए, ये डिस्प्यूटेड जगह को छोड़ दें। क्या लाला मूसा के नौजवानों को सिर्फ डिस्प्यूटेड जगह पे एक ग्राउंड मिला था? और अगर ग्राउंड आपने देना था तो और भी बहुत सी जगह हैं आपके पास। हाजी असगर टाउन है। और रही बात जो आप क्लेम करते हैं, कोई तरीकाकार तय करें कि ये जमीन कैसे बल्दिया किया है या किसी और फर्द किया है। सबसे पहले किसी भी जगह पर तामीर के लिए कुछ कवायद होते हैं, कानूनी कवायद होते हैं। उनमें सबसे पहले, जैसे कि आप लोगों में से कोई भी अपने घर को तामीर करेगा तो सबसे पहले उसको एक नक्शा आपको सामने देना पड़ेगा। अभी भी चंद घंटे हैं आपकी चेयरमैनशिप में, जाए उधर आपने बल्दिया ऑफिस में एक सर्टिफाइड सनदशुदा नक्शा तो सोशल मीडिया पे ही अपलोड कर। अभी तो चंद घंटे हैं आपके पास। कल तो आप कहेंगे जी वो हमारी हुकूमत दे रही, मैं बल्दिया से चला गया था, वो ऐसे हुआ ऐसे हुआ। अभी जाए सिर्फ एक नक्शा, क्योंकि आप स्टेडियम की तामीर में संजीदा नहीं है, फकत अपनी सियासत को बचाने के लिए इतना शुरू होगा कर रहे हैं। क्यों वर्गला रहे हैं लाला मूसा की शेर? क्यों ऐसा कर रहे हैं यार? और जब करने को कुछ ना हो तो शोर ही बचता है। माजरत से कायदे आजम स्टेडियम हमने तो अभी 13 कनाल का ऐलान कर दिया। आपने दावा किया था, हम आपके सामने हाजिर हो गए। लाला मूसा की शहरों का एक हब हमने मुकम्मल कर दिया, जो अपनी तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो होगा वो बाद में होगा। दूसरी बात 1122 के हवाले से दोबारा आऊंगा। उन्होंने कहा कि हमने जगह, हम इसको रोक नहीं सकते। कैसे रोक सकते हैं? मुझे पहले ये समझाइए। हमने कुर्बानी दी है अपनी माओं, अपनी बहनों, अपनी बेटियों के लिए। मैं आपकी गुजारिश करता चलूं अपनी खानदानी रवायात को लेके। माए, बहनें, बेटियां साझी होती हैं, उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। शहादत चार दीवारी के तकद्दस को जितना हम जानते हैं, गायरे साहब आपने कभी तारीख नहीं पढ़ी, करबला से तल्लुक है हमारा। अगर आपको इस बात पे कोई इशू है तो ये जिम्मेदारी भी मैं लेता हूं। सैयद फैजल हसन शाह साहब की जेर निगरानी अपने खानदान के आखिरी फर्द तक मैं ये आपको यकीन दिलाता हूं, जब तक हम लोग यहाँ पे, हमारा खानदान इस जगह पे मौजूद है, सिर्फ आपकी फैमिली नहीं, लाला मूसा की कोई माँ बहन बेटी हो, हमारे हल्का की कोई माँ बहन बेटी हो, जब भी अपने आप को गैर महफूज समझेगी, हम इंशाल्लाह अपनी जान तक लेके सामने आए। ये आपने बात कर सरकार की, बात करने से पहले कुछ सोचा करें। लाला मूसा की हर बहन बेटी, हर माँ, मैंने पहले कहा ये साझे रिश्ते होते हैं। बेटियां तो दुश्मनों की भी आपके होती हैं, माएँ भी आपके होती हैं। आप कैसे सोच सकते हैं कि हम ऐसी हरकत करेंगे? ये इल्जामात
आपकी सोच की अक्कासी करते हैं। अल्फाज को अदा करने से पहले सोच लिया करें। मैं यहां पे ये भी बताता चलूं कि जो तकीर कायरा साहब की वालदा मेरे गांव से थे। जब भी वो हमारे पास कभी कभार मिलने आया करते थे तो हमारी सारी फैमिली उठ के उनका एहतराम करती थी। तो हर माँ बहन बेटी ये सब के साझे रिश्ते हैं। आप ऐसी सोच मत रखें। मैं फिर आपको यकीन दिला रहा हूं, बिलखसूस कह रहा साहब, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि आपने कुछ ऐसा सोचा है। हमारे होते हुए हमारे इलाके की माएँ बहनें बेटियां हर चीज ऐसा ना सोचे कि वो गैर महफूज है। जब किसी ने भी उनका बुरी नजर से देखा, हम अपने जानों के नजराने लेके उनके सामने खड़े थे। बहरहाल वो इस पे बात करते क्यों है 1122 की जमीन के हवाले से? काबिले और बात तो ये है, मैं आपको बताता चलूं कि ये लाला मूसा की माओ बहनों बेटियों का हक है। हमने वो दौर भी देखा है जब बहुत सी माओ के बच्चे उनके हाथों पे तड़पते हुए रेस्क्यू ना होने की वजह से, फकत रेस्क्यू ना होने की वजह से दम तोड़ते हुए हमने देखे हैं। और अगर लाला मूसा को कोई मेडिकल इक्विपमेंट मिल रहा है तो इसमें हरज ही क्या है? लाला मूसा के मैंने लंडा बाजार को जलता देखा, मैंने लंडा बाजार को जलता देखा जिसपे अभी भी आपका बंदा है, जिससे आप किराया ले रहे हैं, उस बाजार को मैंने जलता देखा। मैंने लोगों की रोजी को जलता देखा। अगर आज लाला मूसा में कोई फायर ब्रिगेड का इंतजाम आ जाता है तो इस पे हरज ही क्या है? फकत आप ये सोचते हैं कि आपकी एक गुजरगाह है, बादशाह सलामत के गुजरगाह से हमें कतई कोई तल्लक नहीं। हमने लाला मूसा के शहरों को उनका हक देना है, हमने अपने हल्के के लोगों को उनका हक देना है। उसके लिए किसी की गुजरगाह तबाह होती है तो हमें इससे कतई तौर पर कोई फिक्र नहीं है। और ये कैसे कह सकते हैं कि आपने कुर्बानी दी है? बार बार कहते हैं मैं डी चौक पे धरना दूंगा, मैं डी चौक पे धरना दूंगा। हमारा तो उधर कुछ भी नहीं है, जो भी है लाला मूसा में है। आप जहां से जाएं फिर आए, आपको लाला मूसा में धरना देने की जरूरत नहीं है। हम यहीं पे आपको डी चौक में नहीं, हम सियालमी चौक में मिलेंगे आपको, हम मछली चौक में मिलेंगे आपको, हम मिलाद चौक में मिलेंगे आपको। इन चौक में आके पूछेंगे आपने 1122 के खिलाफ क्या दरखास्त नहीं दी? 150 से ज्यादा अफराद का सनद शुदा एप्लीकेशन महकमा के पास पहुंची है और इस 1122 के प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश की गई है। आए भी चौक में क्यों फैसला करते हैं? आ जाए लाला मूसा के किसी चौक में, फवारा चौक में कर लेते हैं, चांदी चौक में आए, हमसे बात करें, डिबेट करें। आप सालस भी आपकी मर्जी करें, अपने मंसूर ले जाइए, जगह का तैयार भी आप करें। हमें जहां बनाएंगे हम हाजिर हैं, हमें बुलाने की जरूरत भी नहीं है, हम हैं ही यहाँ। आप हैं जो एक बुलंदोबाग दावे के बाद कुछ अर्सा के लिए गायब हो गए। मेरे खानदान का कोई ना कोई फर्द हम वक्त अपने इलाके की खिदमत के लिए यहाँ पे मौजूद है। आगे अब मेरे 2-3 सवाल जरूर हैं। लाला मूसा के शहरियों के सामने मैं ये सवाल रखता हूं, मुझे उनसे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन लाला मूसा के शहरी होने के नाते मैं आपके सामने चंद सवाल रखने जा रहा हूं। क्या आप लोग उनसे पूछेंगे कि ये ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो ये कहते हैं कि हमने कभी करप्शन नहीं, कभी एंटरटेन नहीं किया आपने इक़्तिदार। तो हाजी असगर टाउन में जो बिजली के पोल है, जो आपकी जाती प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को आप सेल करते हैं,
वहां पे जो बिजली के पोल लगवाए गए और तारे लगवाई गई हैं, क्या आपकी अपनी जेब से हैं या किसी की ग्रांट से है? कैसे एंटरटेनिंग है आप? उसके बाद खोखों का बल्दिया के खोखे जो कह रहे हैं हम 20 करोड़ बचाएं या 40 करोड़ शायद। सबसे पहले मैं इस खोखों की आपको हकीकत बताऊंगा। ये 1993 से लेकर 1996 तक की बात है। बेनजीर भुट्टो वजीर आजम थी, मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आला पंजाब थे, लाला मूसा से कैंपी साहब मुंतहिब होते हैं। कुछ वजूहात की बुनियाद पर, किस बुनियाद पर उन्होंने पार्टी तब्दील की, पीपल्स पार्टी में चले गए। तो उस वक्त मोहतरमा ने अपने एमएनएज और अपने वज़रा के लिए कुछ प्लाट लाट किए थे, जिसमें इनकी अलॉटमेंट भी थी। ये जदीद जिसका 39,000 का बार बार तज़किरा करते हैं, तो मसूफ आपके वालिद साहब को भी बेनजीर मोहतरमा ने 2 प्लाट इस्लामाबाद में दिए थे, वहां पे भी आपको अलॉट हुए थे। लेकिन उसके बदले में तो आपने कुछ और अलॉट कराया। ये जहां पे फाटक वाली जमीन हुआ करते थे, जहां पे लावारिस जानवरों को बांध दिया जाता है, उस लीज का तज़किरा कौन करेगा? अगर ये लीज गलत है एक ही दौर में, तो वो लीज सही कैसे? अगर ये लीज आपके किसी गैर मुतल्लका अफराद से है तो गलत हो जाती है। जो आपके मुतल्लका अफराद से, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है जी? ये दौरा में यार छोड़ें, हक की बात करें, मुआवजा कर लें। बहुत गुनाहगार लोग हैं हम, हर वक्त अल्लाह सुब्हान तआला से यही दुआ गो रहते हैं कि बारी ताला हमें हक पे कायम रखे। दावा पारसाई का नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर हो। और ये जो लीज का मामला था, ये भी सबसे पहले जो कैंसिल करवाई थी सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब ने करवाई थी। उस वक्त चेयरमैन हाजी सिर साहब थे गालबन, और शेख फैजुल्लाह सिद्दीकी साहब वाइस चेयरमैन थे बल्दिया के। तो जब ये लीज 39,000 की हुई थी, तो सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब ने कहा था कि ये नाइंसाफी है यहाँ के अवाम के साथ, क्योंकि यहाँ पे पहले ही कुछ लोग बैठे हुए। तो ये सारा मामला लेके सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब ने शेख फैजुल्लाह सिद्दीकी साहब को अपनी तरफ से तमाम इख्तियारात दिए और कहा कि आप इस मामले को सेटल करो, जिस पर शेख फैजुल्लाह सिद्दीकी साहब ने एक फैसला किया और दीगर भी जितने साथ थे, तो थड़े वालों को वही जगह दी गई जो जिस पे वो पहले बैठे। ये आज आपने उन पे कोई एहसान नहीं किया। हम उस वक्त उस पे कायम थे जब हम एमएनए थे, सॉरी एमएनए नहीं थे उस वक्त, जब आप चेयरमैन थे, जब आपके दौरे हुकूमत में आपके जो साथ जो आपकी पार्टी में गए उनको जमीन अलॉट हुई, तो हमने बढ़ के उस लीज को रोका था। और उस लीज के बदले में हमारे डार्क के सामने एक ये भी तय पाया था कि यहाँ पे और पब्लिक के लिए पार्क बना दिया जाए। और ये जो बाहर डार्क के सामने जो फ्रेंड्स आप देखते हैं, वो उसकी सबसे बड़ी दलील है। उस वक्त लाला मूसा के शहरों के लिए जो उस जगह पे बैठे थे थड़ों पर, जिसका आप बार बार तज़किरा करते हैं, वो सैयद मंजूर हुसैन शाह की वजह से आज भी वहां पे, और हमने लाला मूसा के लिए पार्क भी किया। आप कैसे क्लेम कर सकते हैं ये चीजें? और अगर बात करो गैर कानूनी भर्तियों की, तो वो भी मेरे पास
गवाह मौजूद है, एविडेंसेस के साथ बात करूंगा। म्यूनिसिपल कमेटी में सीरियल नंबर 103 मोहरा 13/9/2009 एक एम्प्लॉई है बल्दिया का हुर्रम शहजाद वल्द अब्दुल अजीज, चौकीदार एम्प्लॉई है। नदीम असगर कायरा साहब तहसील आजम, ये बंदा कभी नजर नहीं आया कहीं पे। महाना तनख्वाह वसूल करता है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? बात ध्यान से ना बोले तो क्या बोले? फिर एक और का गैर कानूनी भर्ती सीरियल नंबर 35 1/3/2007 1 मार्च 2007 अतिक्रमान वल्द मोहम्मद शफीक ड्राइवर से मोहतरम भर्ती हुए थे। एक लाला मूसा की बड़ी शरीफ शहरी और एक काउंसलर के, वो ड्राइवर है और आज भी हैं, और वो काउंसलर मोहतरम के बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन भी हैं और तनख्वाह बल्दिया से लेते हैं ये ड्राइवर साहब। उसके बाद इस तरह के और बहुत से मामलात हैं। अभी जी शबीर भट्टी साहब जो कोऑर्डिनेटर भी थे बल्दिया के, इससे पहले तो वो कह रहे कि 8 बंदे ऐसे हैं जो तनख्वाहें ले रहे थे। शिकायतों के अंबार हैं, मसाइल के भी अंबार हैं। समझ नहीं आती किस मसले को उजागर करें। इतने ज्यादा है कि बार बार लाला मूसा के रेवेन्यू की बात करते हैं, हमने इतने बचाए, हमने इतने बचाए, हमने इतने बचाए। क्या आपके पास सिटी मॉल का जो कन्वर्शन नक्शा है उसकी रसीदें मौजूद है? अगर है तो आवाम के सामने लाए। बल्दिया में बहरहाल नहीं जाए, एंटी करप्शन और क्रेज भी लगा हुआ है। आप हमें बार बार कहते हैं सैयद फैजल हसन शाह आए, एंटी करप्शन चलते हैं। अभी जिसका केस चल रहा है उसको तो भुगत के आए, और फिर उसके बाद एक करप्शन और गवर्नमेंट के जितने भी इदारे होते हैं ना जी, ये पीएसओ से तेल लेने के पाबंद है। बल्दिया हो, पुलिस हो, वापडा हो, जितने भी इदारे हैं। तो लाला मूसा बल्दिया जनाब ने पीएसओ से अपने जाती रसूल से मिलकर पीएसओ से इनके कजन का पेट्रोल पंप है, लाला मूसा बल्दिया वहां से सारा आयल लेते हैं। अभी आप किसको बेनिफिट दे रहे हैं? बल्दिया लाला मूसा को या अपने कजन को समझ से बाला कर रही है? हालांकि कानूनी तौर पर आप सिर्फ पीएसओ के मंजूर शुदा पंपों से जितने भी इदारे उनका तेल लेना तेल डालना। खो के एक अलॉटमेंट का अभी मैंने थोड़ी देर पहले मेरे पास आया, 3 दिन पहले आपके जॉइंट सेक्रेटरी पीपल पार्टी के नदीम सिद्दीकी साहब और उनके भाई हैं नवीद सिद्दीकी साहब, उनको 2 खोखे गैर कानूनी तौर पर दिए गए। 3 दिन पहले उनकी बल्दिया की रसीद कट गई। इसका क्या मतलब है? और दिगर जितने भी बैठे हैं उनको आपने रसीद क्यों नहीं दी? सिर्फ आपने जाती हैसियत में ये इनको अलाट किया क्योंकि ये आपके प्यारे हैं, ये आपकी पार्टी के रुकन है। इसलिए अगर हम पे आप पे एक इल्जाम लगाते हैं कि देखिए पीटीआई कि सिर्फ एक बंदे को बचाने के लिए, तो पीपल पार्टी के 2 बंदों को बचाने के लिए आप इतना बड़ा इल्जाम उठाते हैं। दूसरे लोग यहाँ पे रोजी के लिए नहीं बैठे। 3 दिन पहले आपका वो रसीदें देने का मकसद यही है कि ये मंजूर हो जाए और आइंदा भी इससे एंटरटेन करें। ये बात मैं बात करता हूँ। हाँ, बहुत से समझ नहीं आती है कि ऐसे ऐसे इश्यूज भी हैं। बहरहाल शूटर और लोडर वाइस जो है उनकी, मैं तो इसको सिर्फ सुल्ताना की बढ़त ही कहूंगा
क्योंकि अमली कभी मैदान में मसरूफ आए ही नहीं। बार बार कहते हैं इखलाकी जुर्रत। एक जुर्रतमंद कबीले से तल्लुक है हमारा, और आप तो खूब हमारी हलाकी जुर्रत को जानते हैं। बार बार चैलेंज करते हैं, आए आए साहिब कुछ तो ध्यान रखें, हम बुलाते भी नहीं, आपको आना पड़ता है। कभी कुछ तो तारीख अपने का मुताला करते हैं। ये किसको आवाजें दे रहे हो? ये किसको इतनी ऊंची आवाज में ललकार रहे हो? आप शायद भूल गए हैं। कभी कुछ वक्त था, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, जो चुप रहूं तो कलेजा फूंके, जो बोल दूं तो जुबान जले है। मेरा ज़र्फ इस बात की इजाजत नहीं देता। कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि मैं आपको वक्त याद कराऊं। बहरहाल इन चीजों को नजरअंदाज करते हुए, क्योंकि मैं लाला मूसा के मसाइल के लिए, मेरी इलाका मसला नहीं है, लाला मूसा के मसाइल की बात हो रही थी। करप्शन का इल्जाम सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब से लेके सैयद फैजुल हसन शाह साहब तक आपको खुला चैलेंज मैं करता हूं। एक पाई की भी करप्शन साबित कर रहा, हम डी चौक में नहीं जाएंगे। जो पहले बोला है सियालवी चौक, मछली चौक, मिलाद चौक, फवारा चौक, हम यहीं पे आपका इंतजार करेंगे। और अगर आप नहीं आते करप्शन का कोई भी सबूत, तो खुदारा मेरी आपसे गुजारिश होगी, या तो इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कन्फेस करे कि मैं गलत हूं, या इनका से इल्जाम मत लगाइए। उसके बाद कायदे आजम स्टेडियम के हवाले से ही फिर बात याद आ जाती है। ये जो फंड्स बार बार कहते हैं कि मेरे नौजवानों के फंड थे, मेरे लाला मूसा शहर के बच्चों के फंड थे। तो उस वक्त वो फंड किधर थे जब घोड़े दौड़ाए गए? आए मैं आपको बताता हूं कि बल्दिया लाला मूसा का फंड गांव के लोगों पे आपने कैसे खर्च किया, फकत अपने दोस्तों को राजी करने के लिए। कहते हैं हमने करोड़ों फंड लगाए हैं स्पोर्ट्स फंड की मद पर। क्या लाला मूसा में फुटबॉल की टीम खत्म हो गई थी? क्या लाला मूसा के बच्चों ने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था? क्या लाला मूसा में बैडमिंटन के प्लेयर नहीं थे? क्या लाला मूसा में ग्राउंड की बहुतायत हो गई थी? क्या लाला मूसा में हॉकी के लिए कुछ फैसिलिटीज मौजूद है? जो आपको इतनी जरूरत पड़ी कि फंड्स इतने जायद हो गए कि घुड़सवारों के लिए लगा दें। और वैसे भी ये घुड़सवार आपके हम पल्ला थे, आपके हम रकाब थे, इसलिए आपने उनको दावत दी। आपको लाला मूसा की गलियों में, तन गलियों में क्रिकेट खेलते हुए बच्चे नजर नहीं आए। कोशिश करना कारा साहब कि जब भी ऐसा कुछ करें, पहले अपने पांव से लेके करीब से देखना शुरू करें, बाद में दूसरों की बारी आए। उसके बाद मैं ये जो बार बार चैलेंज करते हैं, बात को मुख्तसर करने जा रहा हूं। एक एविडेंस मैं भी लेके आया हूं, ये जरा गौर से देखिएगा। ये एक 1122 का एविडेंस है जी। खेवड़ नंबर 229 है, 5 कनाल 17 मरले जगह है, 1122 की जगह है, जहां पे आपका ये इमरजेंसी रेस्क्यू मंजूर हुआ है। अब मौके पे जाके देखें, 3 कनाल 9 मरला जगह है। सादा सा सवाल है, 2 कनाल 8 मरले जगह किधर है? फिर आप कहेंगे कि किसी रास्ते में होगी। मैं आपको ये लट्ठा बताता हूं, लट्ठा भी मौजूद है मेरे पास। ये वो प्लाट है, ये चौधरी इफ्तिखार कायरा साहब के घर के पास से जो गुजर गया, ये सरकारी रास्ता है। आप बार बार कहते हैं लाला मूसा के शहरियों की आवाज उठाऊंगा,
एंटी करप्शन में लेके चलूंगा। आए, मैं आपको टाइम देता हूं सर, मैं आपको टाइम नहीं देता। मैं आपको सिर्फ इतना कहता हूं, अपने जमीर को जगाएं और ये बताएं ये जगह किसके पास है। लाला मुसा के एक शहरी को मैं ये फर्ज फराहम करने के तैयार हूं। पटवारी की फीस भी मैं देता हूं, पटवारी भी मैं भेजता हूं, पैमाइश भी करवाता हूं। आप सिर्फ मौका पे मौजूद हो जाए, सिर्फ कह रहे साहब आप खड़े हो जाए, हल्फन ये बयान कर दीजिएगा क्या ये जगह आपके इस्तेमाल में नहीं है, और अगर 2 कनाल 8 मरले ये जगह आपके पास नहीं है तो सियासत छोड़ने को तैयार। ऐसी बातें सोच समझ कर किया जाए। लाला मुसा की शहरियों से मेरी गुजारिश है, इनसे हिसाब मांगे। ये एक डिस्प्यूटेड मामले को लेके ऐसी बातें करते हैं और कहते हैं कि जो मैं करने जा रहा हूं, ये थ्रेट किसको करते हैं आप? जो मैं करने जा रहा हूं तो भाई आए, हम पहले से बैठे हुए हैं यहाँ पे, कहां पे करने जा रहे हो? हम यहाँ पे बैठे हैं। किसी की नाजायज किसी की जगह पर बिना सूस मेरे दोस्तों की जगह पर 1 इंच पर भी तजावुज की गई तो इंशाल्लाह मैं सामने खड़ा होऊंगा और हर किस्म का जवाब देने को तैयार हूं। बार बार और ये जो इनका लहजा, इनका रवैया, इनका अंदाज़ तकल्लुम, अंदाज़ गुफ्तगू है, जाते हुए इनके लिए इतना ही कहूंगा, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, खुद ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। अल्फाज किसी भी खानदान की शख्सियत, किसी भी शख्सियत का खानदान, उसकी मिरास और उसके किरदार की अक्कासी होती हैं। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह हम सबको अपने जो मान में रखे, हम सबका हामी नासिर हो। मेरे ये सवालात लाला मुसा के आप बिलखुसूस मीडिया के तवस्सुत से तमाम शहरियों के लिए, तमाम अहले इलाका के लिए हैं। मैं भी सवाल करता हूँ, आप भी सवाल करें। हमें अपना सवाल करने के लिए किसी अदारे की जरूरत नहीं, ये मौजूद हो, हम सवाल करते हैं और अगर फिर भी बात ना बनी तो मेरा मकसद हरगिज़ ये चीज़ें किसी पे इल्ज़ाम लगाना नहीं। अगर बात करते हैं वो एंटी करप्शन की दरखास्त दे सकता हूँ, जी तो चाहता है लगा दो आग दूर को, फिर ख्याल आता है मूसा बेवतन हो जाएगा। अपनी दीवार का ख्याल कीजिएगा। क्या रहा, बहुत धन्यवाद।